আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ। গুড মর্নিং ডিরেকশন। জি, আমরা এইমাত্র আমাদের চিফ গেস্ট আমাদের ডক্টর জাহাঙ্গীর স্যারকে রিসিভ করলাম হামাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে। উনি আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবে আমাদের ল্যান্ড করছেন। এদিক দেখুন, হ্যাঁ এক দেখুন ভিতরে যদি কাতারের আইডি হইতো বা পাসপোর্ট হইতো তাহলে মানে গেট দিয়ে আসতে পারতেন। যদি কাতারের কার্ড হইতো। মিটিং চলতেছে, সমস্যা নাই। ম্যানেজারের সাথে কথা হয়েছে এই মাত্র। হ্যাঁ, তাকে জানাইছি। আমিও মেসেজ দিয়ে দিছি এই বছর ফ্রি থাকলে চলে আসেন। হ্যাঁ, ওকে। আপনার এই যে সাথে মেম্বার বানাইছি মনে হয় যে উজ্জ্বল, আমাদের রায়পুর বাড়ি, সে আসছে, তার সাথে আবার কয়েকজন লোকও আসছে। শামসু আসছে আমাদের রায়পুর বাড়ি। তারপরে আব্দুল করিম আছে একজন, ওই যে 5 স্টার হোটেল চাকরি করে, ভাই আবার আমাকে নামা দিয়ে গেছে। ওরা আসছে কিছু লোক, ল্যাপটপ আছে শেষ করে দিব। 9টা 9:30 শেষ করে দিল। একই ইউনিয়ন জাহাঙ্গীর নামে একজন আছে, সামনে বসেন স্যার, সামনে বসেন। যান, আপনার সামনে যান। অবশ্যই নাই। আলহামদুলিল্লাহ। বিসমিল্লাহ। আমরা এই যে আমরা আসতেছি 10 মিনিট, ইনশাল্লাহ 10 মিনিটের ভিতরে আসতেছি। চলে গেছে, সমস্যা নেই। সমস্যা নেই, গাড়িতে আসতে তবে আপনি যদি আপনি দুপুরের ফ্লাইটে আসতে পারতেন তাহলে আপনি আজকের দিনটা কাজে লাগানো যায়। হ্যাঁ, রেস্ট করে শুক্রবারটাই মূলত যারা ছুটি পায় সবাই আসে। আর একবার এসে যাচ্ছি তো, পরে আবার আসা যাবে, অনেকদিন গ্যাপ না। যদি সকালে 11টা 10টার দিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে আসতে পারেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে আসে। হ্যাঁ, ওটাই পারফেক্ট। না, স্যারে আরেকবার আসবো, নিজস্ব গাড়ি নিয়ে এসে যাইবো একবারে। সৌদি হয়ে আসে, নেক্সট টাইম আবার ফ্যামিলি নিয়ে আসবো হ্যাঁ, দিনের জন্য। গাড়ি নিয়ে এসে যাইবো বাস। ওইটাই সুন্দর। তো আসলে 2010 সালে আসার পরে প্রতি বছরই একবার দুইবার আসা উচিত ছিল। লং টাইম গ্যাপ হওয়াতে আপনার টিমের লোকগুলো একটু হয়ে গেছে, পিছিয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম। কারণ আপনার আসা যাওয়ার মধ্যে, কারণ আমগো এত দামি মোবাইল, আইফোন এত দামি মোবাইল, এরপর প্রতিদিন যদি অলরেডি এয়ারপোর্টে জি আলহামদুলিল্লাহ এয়ারপোর্ট থেকে আমরা বাইরে হইতেছি। স্যারকে সুস্থভাবেই আমরা রিসিভ করলাম এবং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া যে উনি ভালোভাবেই বাহির হয়েছেন। বাহরান থেকে তিনি ডাইরেক্ট জি, শাহজাহান ভাই কাতার চলে আসছে। বের হয়ে গেছে। ইমিগ্রেশন আজকে দেখি অনেক ভিড় ছিল, লেট হয়েছে ইমিগ্রেশনে আর কি, প্রায় 1 ঘন্টা দেরি হয়েছে ইমিগ্রেশনে। ঠিক আছে, এই এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে গেছি, মনে হয় 10 মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। জি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মনে হয় 10 মিনিটের মধ্যে আমরা মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করতে পারবো। মিটিং চলতেছে। কি পাঠিয়ে দিচ্ছেন?
আপনাদের যার যার বিজনেস পার্টনার আছে এখনো সময় আছে, আপনারা আচ্ছা আমাকে আমাদের ওয়াইফাই দাম তো একজনে জি আমার আছে। দুহা কাতার হেড অফিসে পাঠিয়ে দেন বিজনেস পার্টনার অথবা গ্যাসদেরকে, জি আপনি ইয়ে করেন। কারণ উনি এমবিবিএস ডাক্তার, অনেক বড় ডাক্তার, বাহারান তিনি আছেন। রেডমি 9s বাহারান থেকে আমাদের ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে উনি 2 দিনের সফরে আসছেন। আগামীকাল 7টায় আমাদের সন্ধ্যা 7টায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ব্রাঞ্চে আমাদের ওনার প্রোগ্রাম হবে, প্রোগ্রামটা একটু ভালো করতে হবে। ফুলফিল প্রোগ্রাম হবে। যদি মানে ওখানে আর এখনো তিনি আমাদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে ইয়া করবেন, পাসওয়ার্ডটা প্রোগ্রাম পরিচালনা করবেন ইনশাল্লাহ। 23 আজাদ ভাই ভিতরে বাতি আছে না, 82 11 30 23 ভিতরে লাইট। জি ভিতরের লাইট ওই আপনার হিন্দি আছে। জি আলহামদুলিল্লাহ। এবং আপনাদের বিজনেস পার্টনার যদি তাকে অবশ্যই পাঠান, এই 10 মিনিটের ভিতরে উনি পৌঁছে যাবেন, আমরা পৌঁছে যাব অফিসে অলরেডি সবাই ওয়েট করতেছে। এবং আলহামদুলিল্লাহ উনি একজন ডাক্তার হিসেবে এবং আমাদের লিডার হিসেবে আমরা ওনার কাছ থেকে নিতে পারবো যে ডিএক্সএনের প্রোডাক্টের মাধ্যমে আমরা কীভাবে সুস্থ থাকতে পারি এবং বিজনেস কীভাবে করতে পারি। 82 11 তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। তো আপনারা সাথে থাকবেন, আমি ইনশাল্লাহ লাইভে থাকবো। 10 মিনিট পরে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হবে। প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, আমরা ওনাকে নিয়ে যাইতেছি এয়ারপোর্ট থেকে। পাইছেন আসছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই জানি বাংলাদেশে ডিএক্সএন ফ্যাক্টরি ওপেন হয়ে গেছে। মানে অনেকেই তো মানে যায় চলে যাবে বলতে কিন্তু ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে। এরপরে যদি এখনও যদি আপনারা কারো কোনো ডাউট থাকে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন ইনবক্সে, এবং সময় নষ্ট না করে মানে আপনারা চলে আসবেন ইনশাল্লাহ। তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে আছেন আমাদের দোহা কাতারের আমাদের সিনিয়র একজন গ্রেট লিডার, সিনিয়র স্টার ডায়মন্ড, কামিং ডবল ডায়মন্ড, আমাদের মুসলিম সবুজ ভাই। উনি আপনাদের উদ্দেশ্যে ইনশাল্লাহ আমরা কেন ডিএক্সএন করব এবং ডিএক্সএনের যে সম্মান, আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আমরা স্যারকে নিয়ে যাইতেছি রিসিভ করে, এবং ওই জায়গায় আমাদের দোহা কাতারের হেড অফিসে গিয়েও স্যারকে সম্মাননা করা হবে। তো এই ব্যাপারে আমাদের মুসলিম সবুজ ভাই আমাদেরকে একটু কথা বলবেন যে ডিএক্সএন আমরা কেন করা দরকার, মালয়েশিয়া ফ্যাক্টরি চালু হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আসলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে যারা প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত ইয়েতে আছেন। তো আসলে ডিএক্সএন আমরা কেন করব? সর্বপ্রথম হচ্ছে আমার সুস্থতার জন্য আমি ডিএক্সএন করব। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি টাইম ফ্রিডমের জন্য করব এবং মানি ফ্রিডমের জন্য। এমনকি আমরা যদি সুস্থ থাকতে চাই তাহলে ডিএক্সএনের যে প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলো আমাদের প্রত্যেকের দরকার। সে ডিএক্সএন করুক আর না করুক, এখানে সবাই ডিএক্সএন কাজ করবে না। এখানে 5% 10% লোক কাজ করবে, আর 100% লোক এখানে প্রোডাক্ট ইউজ করবে। কারণ তার প্রত্যেকে যেই পেশাতেই থাকেন না কেন, আপনার প্রত্যেকেরই কিন্তু আপনার সুস্থতা দরকার আছে। যেই পেশায় থাকেন, যেখানেই আপনি কাজ করেন, আপনার সুস্থতা অনেক বেশি জরুরি, কারণ আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনার ফ্যামিলি। যেমন আমি যদি আমাকে একটা ট্রেনের ইঞ্জিন মনে করি, তাহলে আমার ফ্যামিলির এক একটা সদস্য এক একটা বগি। এখন ইঞ্জিন যদি কখনো রাস্তা দাঁড়িয়ে যায় তাহলে বগিগুলোর অবস্থা কি হবে? তারাও রাস্তা দাঁড়িয়ে যাবে। তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে কি ইঞ্জিনটাকে মেরামত করে রাখা। কিন্তু দেখা গেছে আমরা কি করি, ইঞ্জিনের উপরে ইনভেস্ট না করে আমরা বগি ডেকোরেশনে অনেক বেশি ইনভেস্ট করে ফেলি। যার কারণে এক সময় হয় কি ইঞ্জিনটা নষ্ট হয়ে গেলে ওই যত সুন্দরই থাকুক বগি, কিন্তু বগিটা ট্রেনের ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায়। যার কারণে আমরা নিজেকে ভালোবাসবো, নিজে সুস্থ থাকার জন্য প্রোডাক্ট ইউজ করব। সর্বপ্রথম হচ্ছে এটা। প্রোডাক্ট ইউজ করার পরে যদি আপনার কাছে ভালো লাগে যে হ্যাঁ আসলে প্রোডাক্টটা ভালো, আমি এটাতে উপকৃত হয়েছি, তাহলে আপনি আপনার পরিচিত যারা আছে, আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল, আত্মীয় স্বজন, ফ্যামিলি, আপনি তাদেরকে দেন যে আপনি যেহেতু উপকৃত হয়েছেন। যদি আপনি উপকৃত না হন তাহলে আপনি কাউকে দেওয়ার দরকার নাই, বলার দরকার নাই, কারণ আপনি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আরেকজনকে ক্ষতি করার প্রয়োজন নেই। তো আমরা যদি এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করি যে আমরা কাউকে হেল্প করব, আমি যদি কাউকে হেল্প করব এই চিন্তা করি, তাহলে দেখা গেছে যে আপনার ডিএক্সএনে একটা অপরচুনিটি আছে আপনাদের। কারণ আপনি চাইলেও আপনার যে কোম্পানিতে জব করেন সেখানে আপনার ভাই, আত্মীয় স্বজন কাউকে ওখানে
এই চাকরি দেওয়া, জব দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কিন্তু আপনি যদি চান যে ডিএক্সএনে আপনি চাইলে এখানে হাজারো লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। তো আমি আশা করি আপনারা যারা ডিএক্সএন এখনও ভালো করে বুঝেন নাই, আপনারা আসেন, আমাদের সাথে বসেন, আগে বুঝেন ডিএক্সএন আসলে করার বিজনেস না, এটা হলো বুঝার বিজনেস। আপনার এখানে করার মতো কিছুই নাই, আপনাকে বুঝতে হবে এটা কেন করবেন, কেন করা দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত কেন ক্লিয়ার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি জিজ্ঞেস করবেন না যে আমি কিভাবে করতে পারি। তো আমরা এই কেনটা সর্বপ্রথম নিজে ক্লিয়ার হবো এবং অন্যকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। তো আজকে এই পর্যন্ত, ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আবার কখনো যদি সুযোগ হয় আল্লাহর রহমতে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করবো। ওকে, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মুসলিম শহীদ ভাইকে। উনি বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরের হোম ডিস্ট্রিক্ট। আমাদের বাংলাদেশের ফেনী জেলার আরেকজন গ্রেট লিডার আছেন আমাদের এএনএম শামসুদ্দিন স্যার, নোয়াখালী ফেনী সেমই। তো আমাদের সাথে এই এএনএম শামসুদ্দিন স্যার আমাদেরকে বলবেন যে ডিএক্সএনে সব কিছু আনলিমিটেড। আমি বলি সব সময় সম্মান, হেলথ ফ্রিডম, মানি ফ্রিডম সব কিছুই আনলিমিটেড। এবং আমাদের মুসলিম সবুজ ভাই ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই প্রোডাক্টের উসিলায়, কারণ ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দান, আমাদের যে প্রাকৃতিক মাশরুম, এই মাশরুমের 80% প্রোডাক্ট, এই প্রোডাক্টের উসিলায় আমাদের হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় খাবার ছিল, আমরা সবাই জানি। এই উসিলায় আমরা সুস্থ থাকতে পারি এবং অপরকে সুস্থ থাকার দাওয়াত দিতে পারি। এটাই, এখানে কোনো মানি গেম না, মানি মেকিং না যে আজকে 5,000 টাকা জমা দেন আগামীকাল 50,000 টাকা হয়ে যাবে, এমন না। মানি গেম না, মানি মেকিং না। এই জন্য যেখানে কোনো ইনভেস্ট নাই এখানে প্রতারিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। এই ব্যাপারে আমাদের এএনএম শামসুদ্দিন স্যার আপনাদের কাছে একটু শেয়ার করবেন। আমরা হেড অফিসে পৌঁছার আগ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ ওয়েলকাম। লাইটটা ওই ছাদের দিকে রাখেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। গুড মর্নিং, ভেরি গুড মর্নিং ডিএক্সএন। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের জুবাইদুর রহমান স্যারকে। যে আসলে দেখেন, আমি দুটো জিনিসের কারণে ডিএক্সএনে অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং এখানে কাজ করার জন্য আগ্রহী হয়েছি। প্রথমত হলো হেলথ, যে সুস্থতার জন্য। আমি শারীরিক সুস্থতার জন্য এখানে এসেছিলাম প্রোডাক্ট ব্যবহারের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত হলো যাইয়া এখানে যে সম্মান, আনলিমিটেড সম্মান, এই যে আজকে আমরা যে জন্য কাতার এয়ারপোর্টে আসছি, আমাদের বাহরাইনের গ্রেট লিডার আমাদের ডাক্তার জাহাঙ্গীর স্যারকে রিসিভ করার জন্য, যে দেখেন এই সম্মান, ইজ্জত, এটা আনলিমিটেড। এখানে কোনো এই হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা, এটার মধ্যে কোনো ফ্যাক্ট নাই, লোক দেখানো নাই, যে আন্তরিকতা, ভালোবাসা ডিএক্সএনে যে আছে। তো এই দুটো জিনিস থেকে আমি অনুপ্রাণিত হই। যেমন আমি কোম্পানিতে জব করি, আমি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এটা ভালো স্যালারি দিয়ে, কিন্তু আমি টাকার জন্য প্রথমে ডিএক্সএনে আসিনি। তো যদি আমি সম্মান এবং সুস্থতা দুইটার জন্য আসার কারণে অটোমেটিক্যালি কিন্তু আমার এখান থেকে ইনকাম আসতেছে, এবং সেটা থেকে আজকে আমি স্বপ্ন দেখতেছি ফ্রিডম লাইফে যাওয়ার জন্য। ইনশাল্লাহ আপনারা দোয়ায় হয়তো কিছুদিনের মধ্যে ফ্রিডম লাইফে যেতে পারবো। যে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য যে স্বপ্ন দেখতেছি, অথচ প্রথম যখন স্বপ্ন নিয়ে কাতার প্রবাসে আসছিলাম তখন কিন্তু বাড়ি যাওয়াটা হয়ে গেছিল দুঃস্বপ্ন। তো এখন আবার ডিএক্সএন আমাকে স্বপ্ন দেখাতে সাহায্য করেছে। আমি স্বপ্ন দেখতেছি খুবই অচিরেই ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে যেতে পারবো, যে একটা ফ্রিডম লাইফে যাওয়ার জন্য পরিবার পরিজনের কাছে থেকে এই ডিএক্সএন থেকে একটা রয়্যালিটি ইনকাম নিতে পারবো এবং লাইফ টাইম ইনকাম নিতে পারবো। তো আপনারা যারা আমাদের এই লাইভে যুক্ত হয়েছেন, শুনছেন, তো অবশ্যই আপনাকে প্রথম সুস্থতা নিয়ে ভাবতে হবে, সুস্থতার জন্য। আর পাশাপাশি আপনি কোনটা চান, কি ফেমাস হতে চান, না ইনকাম চান, না আপনি এই দেশ বিদেশ ঘুরতে চান, যেটা আপনার কাছে চয়েস লাগে সেটা নিয়ে কাজ করবেন, আপনি সফল হতে পারবেন। তো ইনশাল্লাহ আমরা আবার কখনো কথা বলবো। তো আজকে এই পর্যন্ত। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, গুড মর্নিং ডিএক্সএন। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এএনএম শামসুদ্দিন স্যারকে। আমরা অফিসের একেবারে কাছে চলে আসছি। আমরা যারা অনেকেই চিনেন যে সানা সিগন্যালে আমরা আছি, মানে
দোহা তলোয়ার গেট বলা হয়, ওইটার সাথে আমাদের হেড অফিস। আমরা ইনশাল্লাহ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব হেড অফিসে ইনশাল্লাহ। তো আপনারা সাথেই থাকবেন এবং লাইভটা শেয়ার করবেন যেন আপনাদের বন্ধু বান্ধবরাও দেখতে পারেন ইনশাল্লাহ। আর 2 থেকে 3 মিনিটের ভিতরেই আমরা প্রোগ্রামে পৌঁছে যাব। প্রোগ্রাম চলতেছে অলরেডি, তো আলহামদুলিল্লাহ। ফার্মাসিস্ট নিয়ে আসছে। জি, আমাদের এনাম শামসুদ্দিন স্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো আমাদের কাছে শেয়ার করছেন। যে আমরা যারা এখনো ভাবতেছি, অনেকেই আছে যে দাওয়াত পাইছেন ডিএক্সএনে, ভাবতেছেন যে করবেন না কি করবেন না। অবশ্যই আপনারা এখন দুনিয়াটা হাতের মুঠোয়, মানে আগের দিন শেষ। আগে আমরা সবাই জানি যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে যদি বলি যে গরুর গাড়ি ছিল, তারা বলবে যে আরে গরুর গাড়ি দিয়ে আবার কিভাবে গাড়ি বানায়, ঠিক আছে। যদি বলি যে ডেকির মাধ্যমে চাল, ধান থেকে চাল বাহির করা হইতো, তারা বলবে না না এটা অসম্ভব। তো এই দিন শেষ। এখন আমার কথায়, মুসলিম সবুজ ভাইয়ের কথায়, শাকিল ভাইয়ের কথায় রিঅ্যাকশন করবেন, এই দিন শেষ। কারণ দুনিয়াটা হাতের মুঠোয়। আপনি গুগল মামুকে জিজ্ঞাসা করেন, মানে যদি লিখতেও না পারেন, ভয়েস দিয়া আপনি জানতে চান, মানে অজানা বিষয় আপনার 2-3 সেকেন্ডে আপনাকে জানিয়ে দিব, সঠিক তথ্য দিয়ে দিবে। এবং আপনি কিছু দেখতে চাইলে ইউটিউব মামাকে বলেন, দেখায় দিবে। তো এই জন্য এখন এই কাটিং দিয়ে ঢোকার দরকার ছিল না। হ্যাঁ, জি আলহামদুলিল্লাহ। তো এই জন্য আপনারা নিজেরাই রিসার্চ করতে পারবেন, শুধু ইউটিউবে বা গুগলে আপনারা সার্চ দেন শুধু DXN, 3টা লেটার লেখেন DXN, দেখবেন DXN কি আসবে, DXN কোম্পানি প্রোফাইল আসবে, DXN কোম্পানি প্রোডাক্ট আসবে, সব কিছু আসবে, ঠিক আছে। দেখবেন, আপনারা দেখতে পারবেন, রিসার্চ করতে পারবেন, আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সিদ্ধান্ত আপনাদের জীবনকে পাল্টে দিতে পারে ইনশাল্লাহ। তো আমরা এসে গেছি আমাদের হেড অফিসে, তলোয়ার গেটে আলবাদিয়া বিল্ডিং এ। না এই জায়গা নাই তো, আমার তো সামনে ঢুকে ফেলছে, যে পিছনে বড় গাড়ি ঢুকেছে না, ভেতরে ধাক্কা ঢুকে চলে গেছে। স্টার্ট পাই না, চাবি তোর কাছে। এই আপনি ব্যাক সাইডে এন্দি রাখেন, ওই সাইডে পার্কিং পাইবেন সামনে, এর নামাই দেন। হ্যাঁ, আমরা আমাদেরকে নামায় দেন। এগুলারে পিছে দিলে তো এটা কার পিকআপ এই জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা চলে আসছি হেড অফিসে। এই আলবাদিয়া বিল্ডিং, এই বিল্ডিং এর 2 তলায় আমাদের হেড অফিস। ওখানে ম্যানেজাররা এখন না, কোথায় যান? জি আসুন স্যার, ব্যাগ নিতে হবে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি 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 জি। আরো আগে আসার কথা। হ্যাঁ, যে একটা স্ট্যান্ড আছে, স্ট্যান্ডটা নিয়ে নিতে। আচ্ছা, লাগেজ থাকুক নাকি না নিয়ে নিব? এটা নোট আমার স্ট্যান্ড। আমরা নিয়ে নিতে ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, অসুবিধা নাই, আমি নিয়ে নিতেছি। ইমিগ্রেশনে তো 1 ঘন্টা লেগে গেল। এইখানে একটু সময় লাগবে। এই আনাদ ভাই, প্রোগ্রাম শেষ করে দিয়েছে। এই প্রোগ্রাম কি শেষ করেছে? এই যে আমরা হেড অফিসে চলে আসছি। নেট চলে মনে হয়। 7:30 মধ্যে সই করতে পারলে ভালো হতো। না, আসছি তো অনেক আগে। 6:30 আরেকটা খুলবো ওইদিকে।
এক নম্বরে দিচ্ছেন ফোন দিতেছে, মানুষ সব বাইরে যেতেছে মনে হয়, মানুষ সব নিচে টাইম বেশি হয়ে গেছে না? 8টা বার হয়ে গেছে না? কারণ 6টা থেকে তো ওরা সবাই বসে আছে তো। 8টা পার হয় নাই, 3 হয়ে গেছে। 30-40 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেবে। ভালো আছেন? एक सफलता बनने का এখন তো এটা রেডি করছে কি? আসেন, আপনি আসেন। कारण क्या है? क्योंकि सभी का इंजॉयमेंट है ना। अभी देखो कि इंडिया से, बांग्लादेश से बहुत सारे कोरोना मास्टर सर जो TSIP अचीवमेंटर है, वो सभी किधर गया है? मलेशिया, है ना। एंजॉय कर रहे हैं समुद्र में, राइट। सभी फेसबुक चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, देख सकते हैं, है ना। आज देखो कि हमारा गेस्ट सर, है ना, जो आ चुके हैं, वो सर के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। बहुत गर्व है कि हम लोग भले औधा टेक है, भले हम लेबर है, लेकिन आज बहुत खुश हूँ कि MBBS डॉक्टर सर आया, उसका बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूँ। ये कतर में जो हेड ऑफिस है कतर का, है ना, इसमें मैं स्वागत करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ, है ना। एक जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। कितने लोग खुश हैं इस सर के देख के? मैं तो बहुत खुश है कि आज इतना दूर से अब हम लोग के कि बड़े बड़े प्रोफेशनल का लोग आज डिएक्शन कर रहे हैं, है ना। आज देखेंगे तो मैं नेपाल से हूँ, बट मेरा बिजनेस आज नेपाल बांग्लादेश में देखेंगे तो 8,000 पब्लिक है बांग्लादेश में। हर महीना बांग्लादेश से 60-70 हजार एक कतर में आ रहा है। कितना गर्व है ना। हर महीना, है ना। तो ये छोटा मोटा बात नहीं। आज देखो कि बहुत सारे ऐसा कंट्री है मेरे सिस्टम में, 60 कंट्री प्लस में मेरा बिजनेस जा चुके हैं। लेकिन आज देखेंगे ये 60 देश में नहीं, 245 कंट्री में इसका ले जाना है। 100% आने वाले दिन में 245 कंट्री में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कोरोना मास्टर सर का जा चुके हैं 245 कंट्री में। अगर वो सर के अगर जा सकता है तो ये हर्षित का भी कितना दुख है, कितना कष्ट है। एक बार अगर आप आंख मूंद के अगर देख लेंगे अपना फैमिली के बारे में, तो आपको निगेटिव पॉजिटिव का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही बार आप कंटिन्यूटी मेहनत करेंगे, 100% सफलता आएगा। उस दिन इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, आपका फैमिली, रिलेशन, दोस्त सब खुश है ना। उस दिन सब आपके पीछे पीछे आएगा, है ना। इतना अच्छा से जो बांग्लादेश का सर जो बता के गया आप लोगों को कि आज आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके लिए डिएक्शन करना है। ये बोल रहा है कि नहीं कर सकता है, उसके लिए आप डिएक्शन आज से कर दो। आने वाले दिन में वो भी आपके पीछे आएगा, है ना। और वैसा बहुत सारे लोग आज वैसे आ रहे हैं, है ना। जिस दिन शुरुआत किया था उस दिन कोई सुनने के लिए नहीं तैयार था, है ना। लेकिन आज पूरा डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे लोग सुन रहे, कर रहे। आने वाले दिन में मैं कोरोना मास्टर, एक ही सपना है कोरोना मास्टर, है ना। आप लोगों को अनेक प्लान है, अनेक चीज है। जितने डायमंड से नीचे है सभी का प्लान होना चाहिए डायमंड, है ना। 6 महीने में बनो वह साल भर में, राइट। डायमंड के प्लान लो, उसके बाद सीधे लास्ट कोरोना मास्टर के। क्योंकि आप डायमंड बन गए तो 20 साथी का, 20 दोस्त का, 20 फ्रेंड का आप डायमंड बनने का सिखा दो। आप सीए के रूप में 100% देखेंगे पूरा वर्ल्ड। किसी का डाउट है? नहीं है ना। तो सोचो कि ये कतर में जो ये हर्षित लेबर कैटेगरी बन के आया था, लेकिन आज देखो कि इतना पब्लिक ये हर्षित का बात सुन रहा है, राइट। क्यों सुन रहा है? क्योंकि आज सफल हुआ, है ना। आप भी सफल होने के लिए निगेटिव पीपल का बात नहीं सुनना है, सिर्फ अपना। बहुत उदाहरण है इधर, सभी देखो, सभी सक्सेस है, सक्सेस लीडर है ना।
अब ये सक्सेस लीडर का अगर देखकर अगर आपको पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो कोई आपको पॉजिटिव नहीं कर सकता है ना। आपका जो जेब में पैसा नहीं है, उस जेब के खाली के वजह से आपको पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो आपको कोई सक्सेस नहीं बना सकते, है ना। आपको हमेशा पैसा होने के लिए आपको सफल व्यक्ति बनना पड़ेगा। अनसक्सेस पीपुल का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। सक्सेस पीपुल का पूरा दुनिया में वैल्यू होता है, सारे दुनिया मानता है। जो लोग आपको इनकार कर रहे हैं वही लोग आपको पीछे पीछे आएगा, है ना। मेरे साथ पढ़ने वाले साथी एक है ना 5 साल पहले उसका आईडी बना दिया, लेकिन वो आदमी बड़े लेवल तक गया। वो अभी कॉलेज का टीचर है ना। वो 5 साल आईडी डिएक्शन का बना दिया नहीं किया। उसका जो साथी था साथ घूमने वाले है ना, वो भी बड़े प्रोफेशन में गया है। वो इंडिया में जाकर डिएक्शन शुरू किया। अब उसका स्क्रीनशॉट करके बोलता है मेरा साथी इतना बड़ा हो गया डिएक्शन में। मैं बोला कि आपका 5 साल पहले क्या आप अगर स्क्रीन जो नहीं किया होता तो वो आपका साथी आपके नीचे होता, है ना। आज दूसरे जगह से, लेकिन कोई भी जगह से कर रहा है। बहुत सारे ऐसा मिसिंग हो रहा है कि आप अपना साथी दोस्त फ्रेंड रिलेशन का नहीं बताते हैं, लाज लगते हैं, है ना। बताने में शर्म लग रहा है, तो यही हाल होगा, है ना। आपका साथी आपका रिलेशन दूसरा जगह चले जाएगा, राइट। महसूस होगा उस दिन, है ना। तो वो साथी का महसूस हुआ और उसके बाद स्क्रीनशॉट करके पठाया। मैं बोला अभी से भी शुरू कर दो ना, तो जो बचा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग काफी देर से, क्योंकि अभी गर्मी ठंडी बहुत सारे चीज आने वाले हैं, राइट। ये आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन आपको जो सक्सेस होने के लिए गर्मी हो चाहे कितना गर्मी हो ठंडी हो, आपको आना होगा। चाहे इधर नहीं, फोन के माध्यम से रिएक्शन का बात हर दिन फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इमो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आप ऑफिस के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, कोई भी माध्यम से आपका मुंह से ये आवाज आउटपुट होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। आप कोई भी जगह से सक्सेस ले सकते हैं, आवाज सिर्फ आना चाहिए। बहुत सारे साथी दोस्त बोलते हैं टिकटॉक खराब है, फेसबुक में टिकटॉक में डांस करते। टिकटॉक में भी डिएक्शन का बहुत सारे वीडियो है कि नहीं है। आप जो कर रहे हैं वही चीज का पोस्ट करो ना, है ना। उसके बाद 100% आप सक्सेस की ओर जाएंगे, है ना। जो जैसा देखेंगे वो वैसा बनेंगे, राइट। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, है ना। तो ये चीज हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना। आज इसी जगह से हर्षित सर अच्छे बन सकते हैं, है ना। जुबेदर रहमान सर अच्छे बन सकते हैं, ये सर अच्छे बन सकते हैं, अन्नम सर अच्छे बन सकते हैं, दीपक जायसवाल सर अच्छा बन सकते हैं। बहुत सारे इधर लीडर सर सब है, वो सब अच्छा बन सकता है। तो आप लोग क्यों नहीं, है ना। आप लोग भी बन सकते हैं, क्योंकि इधर आपको पढ़ा लिखा बहुत सारे चीज नहीं चाहिए। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एजुकेशन पर्सन है तो लिख लेते हैं, राइट। जो नहीं है वो ये ब्रेन में रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट। लेकिन जो एजुकेशन पर्सन है वो काम करने में इजी आसान हो जाता है, जो नहीं है उसका थोड़ा दिक्कत होता है, वही है न। तो हर लोग डिएक्शन का सिस्टम का आगे ले जा सकते हैं। आपका ये मल्टी लेवल सिस्टम होने के नाते, है ना, आप अगर भले औंठा टेक है, लेकिन आपके नीचे बहुत सारे पढ़ा लिखा लोग आएगा, वही आपको सक्सेस के ओर ले जाएगा। yes! कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहो, कभी भी हार नहीं मानना है ना। थॉमस अल्वा एडिसन जैसन, राइट। आप सोचो कि कितना बार फेल हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग भी बहुत दिन से कर रहे हैं, 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, 20 साल से, राइट। लेकिन आपको हार कभी मानना नहीं। कोरोना आया, क्या हुआ, बहुत सारे सोया, गायब हुआ, लेकिन आप मत गायब हो,
है ना, क्योंकि वो आता जाता रहता है ना। आप आता जाता रहो, आप भी आगे बढ़ जाएगा, है ना। मैं आता जाता रहा, आज देखो कि अभी भी अवेलेबल है। आप जिधर भी रिएक्शन करो, आप ये हर्षित का देखेंगे, है ना। कभी भी ये आउट नहीं होगा। जब तक ये संसार में रिएक्शन रहेगा, ये सूरज रहेगा, ये धरती रहेगा, ये पानी रहेगा, ये तब तक रिएक्शन रहेगा, तब तक ये हर्षित भी रहेगा। क्योंकि आपको अमर होना है तो रिएक्शन करके जाओ। बांग्लादेश का एक लीडर मर गया था 2019 में, अभी भी वो जिंदा है ना। अभी भी उसका पैसा हर महीना उसका फैमिली ले रहा है, तो जिंदा है कि नहीं। मरा हुआ इंसान कभी भी पैसा नहीं कमाता है, लेकिन रिएक्शन का जो लीडर है, जो सक्सेस पर्सन है, उसका हर महीना पैसा उसका घर में जा रहा है। तो सोचो कितना बड़ा रिएक्शन का सिस्टम है कि जनरेशन टू जनरेशन पैसा जाएगा उसका, है ना। इसीलिए आज जिंदा है, कमाकर घर में दे रहे, फैमिली का गुजारा चला रहे, लेकिन आज मर गए तो आपको खत्म इनकम का सोर्स। बट रिएक्शन करके मरो ना, आपका फैमिली तो भी टेंशन में नहीं रहेगा, आपका हर महीना नाम लेगा। जब 8 तारीख आएगा तो नाम लेगा कि मेरा हस्बैंड का पैसा आया, है ना, मेरा फैमिली का पैसा आया, राइट। आपका नाम अमर रह जाएगा सब दिन के लिए, है ना। तो इसीलिए आप लोग को ये बिलीव होना चाहिए, है ना। तो सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सर रेडी कर रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मैं उत्तर दे सकता हूँ। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, क्योंकि आज देखो कि मैं रिएक्शन से सारे एजुकेशन, बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा किया, है ना। आज सोचो कि रिएक्शन की वजह से आज बहुत सारे को जो समस्या है, बहुत सारे लोगों को जो क्वेश्चन है, आंसर है, आज उत्तर देने के लिए ये रेडी है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम नहीं, ये नहीं है। आप लोगों को पास अगर टाइम नहीं है तो टिकटॉक कैसे चलाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं, है ना। रात रात भर आप चलाते हैं, देखते हैं, बहुत सारे अनेक चीज देखते हैं। आप अगर सफल बनना चाहते हो तो जो रास्ता है ना अच्छा, उस रास्ता से, जिस रास्ता से पैसा आता है, उस रास्ता पर आप कंटिन्यूटी करने लगो, देखने लगो, तो 100% आने वाले दिन में आपको उस जगह से पैसा आने लगेगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का, है ना। हमारा जो MBBS डॉक्टर सर आ चुके हैं, है ना, जहांगीर सर, उसके लिए सब कोई जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, है ना। मैं अभी इतना ही बोल के विदा लेना चाहता हूँ, हंसता गुड मॉर्निंग रिएक्शन। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আপনার প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করছি, আসলে স্যার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে, কারণ ইমিগ্রেশন একটু অনেক বেশি লম্বা ছিল, যার কারণে উনি আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে। উনি অনেক আগেই আসছে, কিন্তু ইমিগ্রেশনের জন্য আমরা আপনাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। তো ইনশাল্লাহ আমরা খুব শর্ট টাইমে, স্যার অনেক আগে থেকে সব সেটিং করে রাখছে, অনেক শর্ট টাইমে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা শেষ করবো। এখন আমরা এই পর্যায়ে স্যারকে আমরা সেলিব্রেশন দিব। আমাদের সেলিব্রেশন দিবেন বর্তমানে আমাদের এই যে ডাবল ডায়মন্ড হারজিত কুমার সিং। এই পর্যায়ে স্যারকে সেলিব্রেশন দিবেন আমাদের সিনিয়র স্টার ডায়মন্ড মুত্তাকিন ভাই। সিনিয়র স্টার ডায়মন্ড মুত্তাকিন ভাই। এরপরে স্যারকে ফুল দিয়ে বরণ করবেন আমাদের সিনিয়র স্টার ডায়মন্ড জুবাইদুর রহমান ভাই। এরপরে স্যারকে ফুল দিয়ে বরণ করবেন ESD আহসান হাবিব ভাই। এরপরে স্যারকে ফুল দিয়ে বরণ করবেন আমাদের ESD এনাম শামসুদ্দিন ভাই। এরপরে
হ্যাঁ আমাদের নেপালি ভাই স্টার ইএসডি কিরণ 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 ভাই। এরপরে আমাদের স্যারকে ফুল দিয়ে বরণ করবেন আমাদের এক্সিকিউটিভ স্টার ডায়মন্ড মফিজুল ইসলাম ভাই। এরপরে আমাদের স্যারকে ফুল দিয়ে বরণ করবেন আমাদের সাকিবুল ভাই। সাকিল ভাই বাহরাইন থেকে কাতারে আসছিল স্টার রুবি হয়ে, এখানে আসার পর ইনি স্টার ডায়মন্ড হয়েছে। স্যার বাহরাইন থেকে আসছে। তো আমি এ পর্যায়ে স্যারকে বরণ করবো আমাদের হাফেজ আলামিন ভাই স্টার ডায়মন্ড। এরপরে স্যারকে বরণ করছেন আমাদের এনাম শামসুদ দেলার হোসেন ভাই। তো এ পর্যায়ে পূর্ণপ্রসাদ স্যারকে মঞ্চে আহ্বান করছি। ডাবল ডায়মন্ড পূর্ণ স্যার আর ডাবল ডায়মন্ড দীপক জয় স্যার। স্যারকে সেলিব্রেশন দিচ্ছেন পূর্ণ স্যার ডাবল ডায়মন্ড। তো এই পর্যায়ে আমাদের ডিএক্সএন কাতার পপুলার টিমের পক্ষ থেকে স্যারকে ক্রেস্ট প্রদান করছি মোহাম্মদ মুসলিম পপুলার ডিএক্সএন কাতার পপুলার টিম পক্ষ থেকে স্যারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো এই পর্যায়ে আমি স্যারকে আহ্বান করছি আজকের প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য। নতুনটা এটা ঠিক করবেন নিচে দিলে এবারে ঠিক আছে। আমার হোয়াটসঅ্যাপে হচ্ছে এটা একটা লিঙ্ক দিয়ে দিন, তাহলে আমি গ্রুপে দিয়ে দিবেন। ভিডিও গ্রুপে দিয়েছেন, আমাকে পাঠিয়ে দেন, লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেন। আসসালামু আলাইকুম, गुड मॉर्निंग। मैं फर्स्ट थोड़ा सॉरी बोलता है क्यों बहुत लेट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स वी विल फिनिश। ओके इंशाल्लाह 30 मिनट 40 मिनट के अंदर कंप्लीट करेगा। तो मैं एक्चुअली 7 बजे स्टार्ट करना चाहे, मैक्सिमम 7:30, बट एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में लेट हो गया। बहुत आदमी ज्यादा है उधर, बहुत लेट हो गया, सॉरी। मैं डॉक्टर जहांगीर है, मैं बहराइन में 2014 से बहराइन में है और डीएक्सएन में 2006 से वेरी गुड कंज्यूमर। मैं अभी new one. Okay. No, it's a new one. ये old one. मैं 18 साल डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज करता है, मीन्स आप ऐसा सोचो वेरी गुड कंज्यूमर। मैं कंज्यूमर है, नेटवर्क ट्राई करता है, बट मेरा पोजीशन अभी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। मेरा साथ में 86 स्टार एजेंट है, 12 स्टार रूबी है, 1 स्टार डायमंड है नीचे। बट मैं
फर्स्ट प्रोडक्ट यूज किया, अभी एक्चुअली मेरा ख्याल है डाउन, बस मेरा ख्याल हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए ट्राई करता है हर आदमी। देखो मिडिल ईस्ट में 6 कंट्री में कितना बांग्लादेशी आदमी है, 40 लाख से 50 लाख आदमी है। बहुत नेपाली है, बहुत फिलिपिनो है। मेरा बहुत फिलिपिनो नेटवर्कर है, डॉक्टर है, बहराइनी 5 डॉक्टर मेरे साथ है, ज्वाइन किया। अभी एक टीम बनाया बहराइन में गैनोडर्मा मशरूम का रिसर्च करने के लिए। डॉक्टर लिम 83 से 93 तक रिसर्च किया गैनोडर्मा लेके। रिसर्च करने के बाद वो कंपनी स्टार्ट किया। पहला रिसर्च किया, अच्छा रिजल्ट आया, बाद में कंपनी स्टार्ट किया। राइट और रॉन्ग? यस राइट। पहला कंपनी स्टार्ट करने के बाद रिसर्च नहीं किया, फर्स्ट रिसर्च किया, बाद में कंपनी स्टार्ट किया। आज एक डॉक्टर आया, कंसल्टेंट, सर्जरी कंसल्टेंट, बहराइनी डॉक्टर, बहराइनी पासपोर्ट, बहराइनी डॉक्टर मेरे साथ मिलने के लिए मेरा हॉस्पिटल में आया। मैं 3 बजे तक ड्यूटी में था, ड्यूटी से डायरेक्ट एयरपोर्ट आया। ओके, वो अभी देखता है गूगल में जाने के बाद না এটা না, একটা সাইড চেঞ্জ করুন। দেখেন তো, সরি এখানে চেঞ্জ করেন, আসেন তো, ठीक है। तो वो डॉक्टर बोला मैं गूगल में देखता है गैनोडर्मा लूसिडम का कोई स्टडी है, कोई साइंटिफिक प्रूफ है। वो बोलता है मैं देखता है जो भी मैं मोटिवेटेड हो जाएगा, बाद में मैं यूज करेगा, आदमी लोग का देगा। सो फास्ट आप यूज नहीं करेगा तो आप कैसा मालूम है इसका बेनिफिट की है? आप हर टाइम में पीबी, पोजीशन, नेटवर्किंग ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट आप खुद यूज करना चाहे, फैमिली यूज करना चाहे, और साथ में जो आदमी फ्रेंड है ये दिस वन। थैंक यू। ফার্স্ট হ্যাঁ ফার্স্ট सॉरी मैं अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेगा, बाद में थोड़ा 2-3 मिनट मोटिवेशन का बात करेगा। तो अभी 5 डॉक्टर है बहराइन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सलमानिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तो हॉस्पिटल का डॉक्टर मेरा साथ में टीम मेंबर है। मैं भी चाहता है नेक्स्ट 5 इयर्स गैनोडर्मा से रिसर्च करने के बाद अच्छा से नेटवर्क करेगा। अभी स्टार्ट किया नेटवर्किंग, बट मेरा ख्याल ज्यादा है हेल्दी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मालूम नहीं होता है तो आदमी लोग नहीं यूज करता है। मेरा हेल्थ अच्छा है तो मैं मेरा फैमिली के लिए ट्राई करेगा, मेरा बाप माँ के देखेगा, वो मेरा बीवी बच्चा का देखेगा। मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है तो कैसा देखेगा? मैं कैसा पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा? मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। मैं सिगरेट पीता है और पेशेंट का बोलता है सिगरेट नहीं पियो। मैं मस्जिद में नहीं जाता है और बोलता है मस्जिद में जाओ, सलाह पढ़ो, मैं आता है। मैं पहला जाना चाहे, बाद में बोलना चाहिए आओ मेरे साथ में, ऐसे। सो ये थोड़ा बात किया। अभी मैं स्टार्ट करना चाहे, मैं MBBS किया, बाद में डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, बाद में MSc इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये किंग हमाद यूनिवर्सिटी, RCSI आयरलैंड एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ बहराइन मिलके ये डिग्री देता है बहराइन से। मैं बहराइन में जॉब करता है, साथ में मास्टर डिग्री भी किया। अभी मैं एक फेलोशिप करता है ये हेल्थ केयर क्वालिटी पेशेंट सेफ्टी, अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी से। मैं भी नेक्स्ट ईयर में एग्जाम देगा। अभी तक पढ़ता है, ऐसा नहीं है पेशेंट का मेडिसिन लिखता है और नीचे जाता है, ऐसा नहीं, अभी तक स्टडी करता है। 23 साल में एक्सपीरियंस है मेडिकल प्रैक्टिस में, 23 इयर्स। तो ये भी बोला। अभी मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल आप फॉलो करें तो कितना डिजीज देखो आप कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, 95% डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज। बाद में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई लिपिड, फैट, देन ओवरवेट, मोटा ओवरवेट, देन फैटी लिवर। फैटी लिवर आदमी लोग डॉक्टर के पास जाता है, अल्ट्रासाउंड करता है, डॉक्टर कहता है आपका फैटी लिवर है, वो डरता है मरेगा काल, इतना डरता है जो वो घर में भी नहीं जाता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर एक डॉक्टर बोला फैटी लिवर में मरेगा काल, ऐसा बोलता है, बट फैटी लिवर कुछ भी नहीं है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में एनीमिया, आपका खून ज्यादा नहीं है,
ब्लड में हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं है, ये भी कंट्रोल कर सकता है। सो हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करो तो आपका कितना डिजीज कंट्रोल कर सकता है। ये आज पोस्टर है, आज प्रोग्राम का पोस्टर है, आप मालूम है। तो हेल्थ की है, आप मालूम होना चाहिए। हेल्थ ऐसा नहीं है आपका कुछ भी बीमार नहीं है। हेल्थ ऐसा एक कंडीशन है आपका बॉडी कंप्लीट वेल बीइंग, आप पूरी अच्छा है। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो आपका कोई बीमार नहीं है। आपका थोड़ा खांसी है, आपका थोड़ा पेट में दर्द है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है। सो कंप्लीट वेल बीइंग, पूरी अच्छा है आपका बॉडी, आप अच्छा है, बट थोड़ा मुश्किल आपका रहेगा, ऐसा मुश्किल नहीं है। बाद में देखो हेल्थ का की आपके हेल्थ का में ऐसा बोलता है फिजिकली आपका बॉडी अच्छा होना चाहिए, बाद के आपका मेंटली अच्छा होना चाहिए, आपका दिमाग अच्छा काम करना चाहिए। बाद में सोशली आपका साइड में जो आदमी रहता है, आपका कंट्री, पूरा दुनिया का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। एक फाइटिंग होता है, आपका दिमाग तो काम नहीं करता है। सो आपका सोशली आपका अच्छा रहना चाहिए, आपका कंट्री, आपका रिलेटिव, आपका वो दुनिया का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। बाद में स्पिरिचुअल हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ मीन्स आप मुस्लिम है, हिंदू है और क्रिश्चियन है, आपका जिया पे गॉड इधर भेजा, अल्लाह इधर भेजा, किसके लिए? 50 साल 40 साल 70 इयर्स के लिए। आप अच्छा काम करेगा तो नेक्स्ट लाइफ में आपका अच्छा की मिलेगा, बेस्ट मिलेगा और अच्छा प्राइज मिलेगा, अच्छा प्राइज मिलेगा। सो आपका स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। बाद में इंटेलेक्चुअल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल की है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल अच्छा हो जाएगा तो आपका दिमाग पॉजिटिव काम करेगा, जो थिंक करेगा पॉजिटिव होता है। और ये चार अच्छा नहीं होता है तो आप तो नेगेटिव सोचेगा। सो नेगेटिव छोड़ना चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हर दुनिया में हर आदमी पॉजिटिव थिंक करेगा तो आपका हेल्थ भी अच्छा हो जाता है। सो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, पूरा हेल्थ अच्छा है तो आप अच्छा रहेगा। अभी हेल्दी लाइफ स्टाइल में थोड़ा शॉर्ट करेगा, है बिकॉज कल तो ड्यूटी है आदमी लोग का, आधे घंटा मैक्सिमम 35 मिनट्स में कंप्लीट करेगा। जस्ट स्पेसिफिक पॉइंट में 4-5 घंटा बोलेगा मुश्किल नहीं है, बस स्पेसिफिक पॉइंट बोलेगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए जी यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। की रिस्क नहीं है? आपका हर दिन को टेंशन करता है, मैं कब मरेगा, मेरा बीवी का क्या देखेगा, मेरा बच्चा का क्या देखेगा, ये टेंशन चलता है कंटिन्यूअस। घर से बोलता है पैसा भेजो, पैसा भेजो, किधर से पैसा भेजेगा, कल भेजा, आज भी बोलता है आज भी भेजो, ऐसा बोलता है। सो ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आप मरेगा टेंशन नहीं करना चाहिए, आप रेडी है, कल मरेगा, 1 घंटा बाद मरेगा, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। ये लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ये लाइफ स्टाइल होना चाहिए आपका, बड़ा बीमार का टेंशन नहीं होना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर, लंग कैंसर, ऐसा टेंशन नहीं होना चाहिए। आप सिगरेट पीते हैं तो लंग कैंसर होता है, अल्कोहल पीता है तो लिवर कैंसर होता है, ऐसा होता है। सो आप कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपका हार्ट ब्लॉक होता है, ब्रेन में स्ट्रोक होता है। सो आपका लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, कोई बीमार का रिस्क नहीं है, मरने का कोई रिस्क नहीं है। आप अभी मरने का मुश्किल की है, मैं तो आया मरने के लिए। दुनिया का हर आदमी रेडी थकना चाहिए, जो 1 घंटा बाद मैं मरेगा, मेरा कोई टेंशन नहीं है, मेरा कोई डिमांड नहीं है। मेरा डिमांड ऐसा है, मेरा जिंदगी अच्छा होना चाहिए और रेडी थकना चाहिए वो अल्लाह के पास, गॉड के पास जाने के लिए। ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए, कोई टेंशन नहीं करना चाहिए, कोई डरना नहीं चाहिए। ये लाइफ स्टाइल चाहिए, कोई रिस्क नहीं है। ओके, ये हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए 4 पैरामीटर है, 4। हेल्दी डाइट, डेली एक्सरसाइज, जस्ट एनफ स्लीप और पीसफुल मेंटल स्टेटस। नंबर 1 है अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, बैलेंस खाना होना चाहिए। बाद में डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करेगा तो आपका बॉडी अच्छा नहीं रहता है। जो आदमी का बीमार नहीं है वो भी एक्सरसाइज करना चाहिए। बाद में जस्ट एनफ स्लीप, एनफ स्लीप मीन्स अच्छा नींद होना चाहिए, कंप्लीट नींद होना चाहिए। नींद अच्छा नहीं होता है तो आप ऑफिस में जाओ, बाद में काम नहीं आता है, दिमाग काम नहीं करता है। बाद में आपका मेंटली पीस रखना चाहिए रेगुलर। फर्स्ट मिनट बोलने का डाइट के लिए, डाइट 7 पैरामीटर है, 7
वो मेडिकल साइंस में 6 से मैं एक ऐड किया सप्लीमेंट ये नंबर 7 डाइट है। वो डॉक्टर लोग बोलता है, न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है कितना 6 डाइट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन, मिनरल। मैं बोलता है नंबर 7 ये सप्लीमेंट। कौन सा सप्लीमेंट है? DXN ऑर्गेनिक नेचुरल हेल्दी फूड सप्लीमेंट, राइट और रॉन्ग? तो ये 7 पैरामीटर आएगा तो डाइट कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जिंदगी सही हो जाएगा, आपका कोई टेंशन नहीं होता है। तो नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? देखो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? जो खाना ज्यादा खाता है, चावल ज्यादा खाता है, रोटी ज्यादा खाता है, नूडल्स ज्यादा खाता है, राइट? जो खाना आप ज्यादा खाता है वही कार्बोहाइड्रेट है। सो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। जो आदमी का कोई बीमार नहीं है वो भी कम खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। चावल, रोटी, पोटैटो, सीरियल्स, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट, बार्ली, पास्ता, नूडल्स सब कुछ कार्बोहाइड्रेट है। पोटैटो सब कुछ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कैसा खाता है? कम खाना चाहिए। आप जो खाएगा इसमें से कम खाना चाहिए। सो आपका बॉडी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपका कार्बोहाइड्रेट भी कम खाना चाहिए। नहीं खाएगा तो मोटा हो जाएगा, बीमार आएगा, शुगर बढ़ेगा, मुश्किल होता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल की बोलता है कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए। ओके, देन ये कार्बोहाइड्रेट है, देखो ये कार्बोहाइड्रेट है। देन प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन आप मालूम है, मीट, बीफ, मटन, चिकन, सी फूड, एग, बीन्स, नट्स, सीड्स, डेयरी फूड, योगर्ट, सब कुछ, सोयाबीन, एवरीथिंग प्रोटीन आपका बॉडी का जो डिमांड है वही खाना चाहिए, कमती नहीं है, ज्यादा नहीं है। मैं बोला कार्बोहाइड्रेट कमती खाना चाहिए, राइट? बट हेल्दी लाइफ स्टाइल बोलता है प्रोटीन कमती नहीं है, ज्यादा नहीं है, आपका जो डिमांड है वो खाना चाहिए। बिकॉज आपका प्रोटीन की करता है, आपका बॉडी बिल्ड करता है, बॉडी का अच्छा रखता है, बिल्ड करता है। और कार्बोहाइड्रेट की करता है? एनर्जी देता है, एनर्जी। बट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए तो मोटा हो जाएगा। सो प्रोटीन आपका बॉडी बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए। आपका प्रोटीन कमती भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, ऐसा। फैट, ये प्रोटीन है, देखो बीफ, मटन, चिकन सब कुछ प्रोटीन है। बाद में फैट भी आपका एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। बट आदमी लोग बोलते हैं फैट खाएगा तो आपका मुश्किल हो जाएगा, ऐसा होता है, वैसा होता है। आपका बॉडी में कितना वाटर लगेगा? 1 किलो वेट के लिए 50 ml वाटर चाहिए डेली। आपका 60 किलो बॉडी वेट है तो कितना लगता है? 3 लीटर पानी लगता है, 60 किलो बॉडी वेट। सो 1 किलो बॉडी वेट के लिए कितना है? 50 ml। आप कैलकुलेट करो, आपका 70 किलो बॉडी वेट है, कितना आता है? 3.5 लीटर। तो थोड़ा ज्यादा थोड़ा कमती मुश्किल नहीं है, बस 50 kg 1 kg बॉडी वेट के लिए 50 ml पानी चाहिए डेली 24 आवर्स में। पानी कमती है तो मुश्किल है, पानी ज्यादा है तो किडनी का मुश्किल होता है। बस ½ किलो कमती और ½ किलो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो पानी अच्छा नहीं है तो आपका ब्रेन अच्छा काम नहीं करता है। बाद में कभी डॉक्टर बोलता है, न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है सुबह 5-6 ग्लास पानी पियो सुबह नींद से उठने का बाद। क्यों? हाँ, रात को 8 घंटा आप नींद गया, 7 घंटा नींद किया, आपका ब्रेन न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इसके लिए सुबह नींद से आने के बाद आपका 5-6 ग्लास पानी पीने के लिए बोलता है। बाद में विटामिन कौन सा है? विटामिन ऐसे आप जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पानी पीता है, इसमें भी विटामिन है। मिनरल कौन सा है? मिनरल, इसमें भी मिनरल्स है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन आप जो खाना खाता है इसमें है। आप मालूम नहीं, ऑटोमेटिक विटामिन आता है। बस डॉक्टर के पास ज्यादा बोलता है कि आपका विटामिन बी है, कमती है, आपका इधर सूजन होता है, इधर सोन होता है, तो ऐसा बोलता है, विटामिन बी देता है। बोलते हैं आपका विटामिन डी कमती है, आप बाहर में धूप में जाओ, धूप में जाने के बाद विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी कैप्सूल देता है। बस आप खाना में विटामिन डी है, ऐसा है विटामिन। बाद में मिनरल कौन सा है? कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये आपका खाना में आता है। अभी देखो लास्ट में मैं सप्लीमेंट बात करेगा। सप्लीमेंट कौन सा है? सप्लीमेंट है DXN, जो सप्लीमेंट है ये DXN ऑर्गेनिक नेचुरल हेल्दी फूड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट की है, आप जो खाना पीना खाता है इसमें जो गैप है, गैप फिलअप करने के लिए